Students, Class 6 CBSE and Model Sanskriti students in Haryana. Class 6, Chapter number 6, New Questions and Ideas. आप इस तस्वीर में देख रहे हैं. This was the first time Angha was going on a school trip. और जो है अनघा स्कूल ट्रिप पर जा रही है. They boarded the train from Pune in Maharashtra late at night to go all the way to Varanasi in Uttar Pradesh. और अनघा को पुणे से वाराणसी उत्तर प्रदेश जाना था. Her mother, who came to see her off at the station, उसकी माँ उसको स्टेशन पर छोड़ने के लिए आई, told the teacher, do tell the children about the Buddha, कि इन बच्चों को बुद्ध के बारे में बताएं, and take them to see सारनाथ as well, और सारनाथ के बारे में भी उनको बताएं. तो आज हम करेंगे स्टूडेंट्स द स्टोरी ऑफ. स्टूडेंट्स, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ महात्मा बुद्ध. यह महात्मा बुद्ध की तस्वीर है. यह ध्यान मग्न है. In the story of Buddha, the Buddha belonged to a small gana known as the Sakya Gana. और बुद्ध का संबंध साक्य गण से था. And was a क्षत्रिय, और बुद्ध एक क्षत्रिय थी. When he was a young man, he left the comforts of his home in search of knowledge. और उन्होंने अपना घर छोड़ दिया ज्ञान की खोज में. He wandered for several years, meeting and holding discussion with other thinkers. दूसरे विचारकों के साथ आपने बहुत चर्चाएं की. He finally decided to find his own path to realization. फिर उन्होंने निर्णय लिया कि वह अपना रास्ता चुनेंगे. And meditated, उन्होंने समाधि लगाई for days on end under a peepal tree at Bodh Gaya in Bihar, where he attained enlightenment. और उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई. कहाँ? बोध गया में. कौन से वृक्ष के नीचे स्टूडेंट्स? पीपल के वृक्ष के नीचे. After that he was known as Buddha or the wise man. फिर उनको बुद्ध कहा गया. He then went to Sarnath. फिर आप सारनाथ गए near वाराणसी, where he taught for the first time. और उन्होंने पहली बार अपना उपदेश दिया. He spent the rest of his life traveling on foot, going from place to place, teaching people till he passed away at कुशीनारा. और बुद्ध कुशीनारा में स्वर्ग को प्राप्त हो गए थे और सारी आयु उन्होंने लोगों को उपदेश देने में बिताई. Students, there is a story related to Buddha, the story of Kissa Gotami. Here is a famous story about the Buddha. Once there was a woman named Kissa Gotami whose son had died. एक औरत किस्सा गौतमी, जिसका पुत्र जो है स्वर्ग को प्राप्त हो गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी. She was so sad that she roamed through the streets of the city carrying the child with her, asking for help to bring him back to life. और वह अपने बच्चे की डेड बॉडी लेकर पूरे शहर में घूम रही थी कि कोई उसे जीवित कर दे. A kind man took her to the Buddha. और एक दयालु व्यक्ति उसको बुद्ध के पास ले गया. The Buddha said, bring me a handful of mustard seed and I will bring your child back to life. और बुद्ध ने उस औरत से कहा, किस्सा गौतमी से, कि आप एक मुट्ठी राई मेरे लिए लेकर आओ. किस्सा गौतमी was overjoyed and started off at once. किस्सा गौतमी ने यह बात सुनी और वह चल पड़ी. But the Buddha gently stopped her and added, और बुद्ध ने उसको रोका और कहा, the seeds must come from the house of a family where nobody has died. कि ऐसे घर से सीड्स लेके आने हैं जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो. किस्सा गौतमी went from door to door. किस्सा गौतमी डोर टू डोर गई. but wherever she went, वह जहाँ भी गई, she found out that someone or the other, father, mother, sister,
brother, husband, wife, child, uncle, aunt, grandfather, grandmother had died. किसी ना किसी के यहाँ किसी ना किसी की मृत्यु कभी ना कभी अवश्य हुई. What was the Buddha trying to teach the sorrowing mother? Buddha wanted to teach the mother that the death is unavoidable. डेथ को आप रोक नहीं सकते. डेथ इज जो है ट्रूथ. तो स्टूडेंट्स, दिस इज अ स्टोरी अबाउट स्टूडेंट्स. इन दिस चैप्टर वी रेड अबाउट 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी. भारतीय दर्शन की 6 जो संस्थाएं हैं कौन कौन सी हैं. महात्मा बुद्ध के समय की ही बात है. ओवर सेंचुरीज India's intellectual exploration of truth has come to be represented by 6 systems of philosophy. और इनको 6 दर्शन शास्त्र कहा जाता है सत्य की खोज में. These are known as वैशेषिका, न्याय, समाख्या, योग्या एंड पूर्व मीमांसा एंड वेदांता और उत्तर मीमांसा. These 6 systems of philosophy are said to have been founded by sages यानी कि साधु. ये कौंडा, गौतम, कपिल, पतंजलि, Gemini and Vyasa respectively. These philosophies still guide scholarly discourse in the country. और आज भी यह जो है दर्शन उपलब्ध करवा रही हैं. जर्मन बोर्न ब्रिटिश आइडियोलॉजिस्ट Friedrich Max Muller has observed that 6 systems of philosophy were developed over many generations with contribution made by individual thinkers. However, today we find an underlying harmony in their understanding of truth, although they seem distinct from each other. और सभी सत्य की कहानी कहते हैं अलग अलग होने के बाद. तो स्टूडेंट्स, इसके दौरान ही आप करेंगे उपनिषद कि उपनिषद का क्या अर्थ है. उपनिषद के बारे में भी हमें ज्ञान होना चाहिए. अराउंड द टाइम दैट बुद्धा वॉज प्रीचिंग एंड परहैप्स ए लिटिल अर्लियर, अदर थिंकर्स आल्सो ट्राई टू फाइंड आंसर टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस. बुद्ध के समय में ही बहुत सारे विचारक सत्य क्या है उसके प्रश्न का जो है उत्तर खोज रहे थे. सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ, कि लाइफ आफ्टर डेथ, कि डेथ के बाद जीवन का क्या होता है. अदर वांटेड टू नो वाई सैक्रिफाइसेस शुड बी परफॉर्म्ड, कि यज्ञ क्यों किए जाते हैं. मैनी ऑफ दीज थिंकर्स फेल्ट दैट देयर वाज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर डेथ, कि कुछ ऐसा है जो मृत्यु के बाद भी चलता है. दे डिस्क्राइब्ड दिस एज आत्मा और द इंडिविजुअल सोल. इसको आत्मा कहा गया. स्टूडेंट्स, पाणिनि द ग्रामरियन, ग्रामर के बहुत ही बड़े विद्वान, व्याकरण की. दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन अदर स्कॉलर्स वर एट वर्क. दूसरे विद्वान भी कार्य कर रहे थे. वन ऑफ द मोस्ट फेमस वाज पाणिनि, और उनमें सबसे प्रसिद्ध थे पाणिनि, हु प्रिपेयर्ड ए ग्रामर फॉर संस्कृत, जिन्होंने संस्कृत भाषा के नियम बनाए जिन्हें संस्कृत व्याकरण कहा गया. He arranged the vowels and the consonant, उन्होंने स्वरों और व्यंजनों को जो है व्यवस्थित किया in a special order, and then used these to create formulae like those found in algebra, और जो है algebra की तरह से उन्होंने किया उनको व्यवस्थित. He used these to write down the rules of the language in short formula, around 3000 of them. और पाणिनि ने जो है ग्रामर के लगभग 3000 सूत्र जो हैं वो. स्टूडेंट्स, महात्मा बुद्ध के बाद हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे. द लास्ट एंड द 24th तीर्थंकर ऑफ द जैनिज्म, वर्धमान महावीर, यानी कि जैनियों के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए. आल्सो स्प्रेड हिज मैसेज अराउंड दिस टाइम, और इसी समय में जहाँ महात्मा बुद्ध का समय था, अराउंड 2005 years ago, 2500 साल पहले. ही वॉज ए क्षत्रिय प्रिंस ऑफ द लिच्छवी गण, ए ग्रुप दैट वॉज पार्ट ऑफ द वज्जी संघ, और वज्जी संघ का लिच्छवी गण था.
उसके वो जो है राजकुमार थे, अबाउट विच यू रेड इन चैप्टर 5। एट द एज ऑफ 30 साल की उम्र में ही लेफ्ट होम एंड वेंट टू लिव इन ए फॉरेस्ट, वे वनों में चले गए। फॉर 12 years ही लेड ए हार्ड एंड लोनली लाइफ, उन्होंने एकांत जीवन जिया। एट द एंड ऑफ विच ही अटेन्ड एनलाइटनमेंट, और उनको भी फिर ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ही टोट ए सिंपल डॉक्ट्राइन, मैन एंड वुमेन हु विश टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम्स, कि जिसको सत्य की खोज करनी है उसे घर छोड़ना होगा। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा, और अहिंसा के नियमों को मानना पड़ेगा। विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स, ऑल बींग्स सेड महावीरा लॉन्ग टू लिव, यानी कि सारे जीव जो हैं वो जीना चाहते हैं। टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर, और जीवन सबको जो है प्यारा लग। दिस इज द पिक्चर ऑफ भगवान महावीर। भगवान महावीर की समाधि की तस्वीर है ये 24वें तीर्थंकर जैन धर्म की। स्टूडेंट्स, अब हम इस पाठ पर आधारित MCQs और क्वेश्चंस करेंगे। हु वेंट टू गौतम बुद्ध फॉर सेविंग लाइफ ऑफ हर सन? बताइए मुझे, आपने अभी सुना है अहिल्या महावीरा किस्सा गौतमी, तो इसका उत्तर है किस्सा गौतमी। क्वेश्चन नंबर 2, विच लैंग्वेज वाज यूज्ड बाय बुद्धा टू कम्युनिकेट विद पीपल? और बुद्ध ने कौन सी भाषा का प्रयोग लोगों से बात करने में किया? हिंदी, इंग्लिश, प्राकृत या संस्कृत? इसका उत्तर है स्टूडेंट्स प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धार्थ वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ बुद्ध, महावीर, शिव, नन ऑफ द अबव? इसका उत्तर है बुद्ध। बुद्ध को गौतम भी कहा जाता था और उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ। महावीरा वाज द प्राइम ऑफ मगधा, कलिंगा, लिच्छवी या कुशीनारा? तो इसका उत्तर है लिच्छवी गण। लिच्छवी गण के वो प्रमुख थे। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, वल्लभी इज सिचुएटेड इन द स्टेट? वल्लभी कौन से स्टेट में है? वल्लभी इज सिचुएटेड इन गुजरात, गुजरात स्टेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द प्राकृत स्पोकन इन मगधा वाज नोन एज प्राकृति, मगधी, मग्ध, प्राकृत, नन ऑफ दीज? मगधी, इसको मगधी भाषा कहा जाता है। स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड इज नोन एज, यदि आप कोई कुंवारा रहता है इस स्थिति को क्या कहा जाता है? कैलिबेसी, कैलिबेसी, इसको कहा जाता है सेलिबेसी, इसको सेलिबेसी कहा जाता है। नेक्स्ट, ए फॉलोअर ऑफ वर्धमान वाज नोन एज बुद्ध, ब्राह्मण, जैन, क्षत्रिय? वर्धमान महावीर के अनुयायियों को जैन कहा जाता है। हु कंपोज द ग्रामर ऑफ संस्कृत? संस्कृत की ग्रामर किसने बनाई, यानी कि व्याकरण का जनक कौन है? महावीर, पाणिनि, बुद्ध, अनघा? तो इसका उत्तर है पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 10, बुद्ध बिलीव्ड दैट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन इज कर्मा, हैप्पीनेस, सैडनेस? ये हमारा कर्म है। बुद्ध बिलीव्ड दैट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन, ठीक है, कर्मा। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर डिड बुद्ध गिव हिज फर्स्ट टीचिंग? और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? कुरुक्षेत्र, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनारा? इसका आंसर है स्टूडेंट्स सारनाथ। द लैंग्वेज ऑफ अवेस्ता एंड द प्रैक्टिसेस डिस्क्राइब्ड in it are very similar to those of the Mahabharata, Quran, Bible, Vedas. Its answer is Vedas. Panini, who prepared a dash for Sanskrit, dialogues, novels, word grammar? इसका आंसर है grammar. गौतम बुद्ध father was the chief of dash clan? इसका आंसर है साक्य कलैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ट्री डिड बुद्धा गेन एनलाइटनमेंट? इसका आंसर है पीपल ट्री।
पीपल ट्री के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। हाउ मेनी आश्रम्स वर रिकॉग्नाइज्ड? उपनिषदों में कितने आश्रम कहे गए हैं स्टूडेंट्स? 4। इसके 4 आंसर हैं, बचपन से लेकर मृत्यु तक। विच मीन अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। विच मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, किसके नज़दीक यानी कि गुरु के नज़दीक बैठना क्या कहलाता है? उपनिषद। उपनिषद का अर्थ है गुरुओं के नज़दीक बैठना। महावीरा वाज डैश प्रिंस, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय। मैंने बताया है कि महावीर जैन और महात्मा बुद्ध दोनों क्षत्रिय थे। Zoroaster teaching are contained in the books called, it is called Avesta. Zoroaster teaching are contained in the books are called Avesta. Dash was an association of those who left their homes. It is संघ, जो घरों को छोड़ देते थे वो संघों में चले जाते थे। Who was the founder of Buddhism? बुद्धिज्म के फाउंडर कौन थे? Its answer is सिद्धार्थ गौतम। ओके स्टूडेंट।